फर्स्टली कैंप काफ़ी अच्छा रहा है। जो हमने 6 दिन प्रैक्टिस करी है आई थिंक बहुत प्रोडक्टिव थी और कोशिश हमने ये करी, जैसे 4 दिन हमने नेट्स में स्किल्स प्रैक्टिस करी, फिर 2 दिन हमने मैच सिमुलेशन करा, तो काफ़ी रियलिस्टिक प्रैक्टिसेस थी। और ऑब्वियसली अनिल भाई का एक्सपीरियंस इज़ ह्यूज बूस्ट फॉर द टीम। बॉलर्स को काफ़ी एक स्ट्रांगली सपोर्ट फील हो रहा है इन टर्म्स ऑफ कि एक ऐसे हमारे कोच हैं जो खुद वो सिचुएशन में टीम को कितनी बार जिता चुके हैं, तो वो माइंडसेट से आप हमेशा एक अलग तरीके से समझा सकते हैं बॉलर्स को। तो आई थिंक उनको काफ़ी हेल्प मिली है। प्लस बैट्समैन भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं अपने एंड पे। काफ़ी मेहनत करी है सबने अलग अलग चीज़ों पे, रिवर्स स्विंग पे, स्पिनर्स के अगेंस्ट स्वीप प्रैक्टिस करना, तो काफ़ी स्पेसिफिक प्रैक्टिस रही है। कल एक हमारी टीम एक्टिविटी थी शाम को, तो एक सरप्राइज़ था अनिल भाई की तरफ से। वो एक्चुअली हमें लगा कि कोई बहुत सीरियस सेशन है, लेकिन हम अंदर गए तो काफ़ी एक फ़न एक्टिविटी थी जो आई थिंक बहुत ज़रूरी होती है एज अ टीम। हम कभी कभी भूल जाते हैं अपनी इंडिविजुअल प्रेपरेशन में एक टीम बॉन्डिंग सेशन की इंपॉर्टेंस को भूल जाते हैं। तो आई थिंक जितनी वो उसका यही मोटिव था कि जितनी आपस में हमारी कमराडरी बनेगी और जितनी कोऑर्डिनेशन अच्छी होगी, तो फील्ड पे जो आपके प्लान्स हैं वो काफ़ी आसानी से एग्जीक्यूट हो जाते हैं, क्योंकि आप एक दूसरे का माइंडसेट समझ पाते हैं। तो मुझे काफ़ी मज़ा आया, सब टीममेट्स को काफ़ी मज़ा आया। धोनी भाई ने भी बात करी हम लोगों से, वो वहाँ पे ऑब्वियसली मीटिंग के लिए थे, उनको भी मज़ा आया वो सेशन का पार्ट बन के। और बाद में उन्होंने ऑब्वियसली टीम को अच्छा विश किया कि आगे लंबा सीजन है और ये ऐसे इवेंट्स होने काफ़ी ज़रूरी हैं और उस चीज़ को हम पूरा एंजॉय करें। West Indies are a tough side. At home, they know the conditions there. Yes, obviously they're in a transition phase, and there'll be some young West Indian players playing in Test cricket. Like you mentioned, we are expected to win, but the conditions are pretty similar to what we get here at home. So, we've looked at. We still have about 2 weeks before the first test. We have a couple of practice games at St. Kitts, so we will try and try out various combinations, give everybody an opportunity to have a knock in those 2 matches, and then decide what's the ideal combination for us to go leading into the first test. Only few of them have played in West Indies. Others have played in the shorter format, not necessarily in a test match, but the experience is there, and having played there before, it's no different. It's all about test cricket and how you win sessions. That's going to be the motivation. I think, instead of looking at the opposition, one thing that we'd like to drive as a team is to look at our own selves and how we can improve constantly. See, Shami is obviously a very skillful guy. We all know that. He has a lot of ability with the ball. The way he bowls, the way the ball is released, where he pitches the ball, it's more or less perfect for Test cricket. The lines and the lengths he bowls are always attacking no matter what the wicket is. And the best thing about him is if it's seaming and it's swinging, he can bowl you the conventional line and lengths, but if it's reverse swinging, he knows exactly where to bring in the ball from. He has a great sense and a feel of how to get batsmen out. So we always have been working with him on the mental strength aspect of his game, where more consistency is always something that we pushed for him. And he's obviously very eager to come back and prove himself all over again after injury, because he was going through a great season. He was in great rhythm, then he got injured. Even in the World Cup he didn't play. So I'm sure he's eager to go out there and prove himself once again. And we've seen in India in the West Indies series that we played his reverse swing skills in Kolkata and Mumbai. Even in Adelaide, one of the days I remember in the last session he got 2-3 wickets and brought us back into the game somehow. So he's always someone that you can bank on, in terms of picking up wickets in shorts bursts. If you want a good attacking spell, Shami can always deliver that for you. He's got pace, he's got a great bouncer, so obviously he's someone that we always back, because we know we can take those 2-3 important wickets for us at any stage. So that's what Shami brings to the table as far as from a captain's point of view, and I'm glad to have him back in the team. I love his aggression. I was no different. I was also aggressive. Very different in terms of the way we probably came across on the field. But you don't want to curb. I'll be the last person to curb someone's natural instinct. But of course, we all know how important it is to
be the ambassadors of India and to be a part of the Indian cricket team that everybody in the team understands, and we will ensure that there's a thin line and everybody knows that, and I won't certainly curb anyone's natural instinct. देखिए ऑब्वियसली आप जैसे अनिल भाई ने बोला, आप कोई भी टेस्ट मैच या वनडे मैच या T20 मैच खेलते हैं तो ऑब्वियसली पहले आपका इंटेंशन ये रहता है कि हमें जीतना है। तो हमारा इंटेंशन हमेशा यही रहेगा कि हम जीत के लिए जाएंगे। ऐसे सिचुएशंस हुए हैं बीच में जहां हम हारे भी हैं, लेकिन हमें पता है कि हम पॉजिटिव क्रिकेट खेले, इसलिए हम ऐसी पोजीशन में आ पाए कि हम जीत भी सकते हैं या हार भी सकते हैं। तो हम हारे अपनी गलतियों से, और हमें रियलाइज ये करना है कि हम उस पोजीशन में आए हैं 80% अच्छी क्रिकेट खेल के, तो हम फोकस करते हैं जो 20% हमने मिस्टेक्स करी हैं उसको इम्प्रूव करें और बाकी 80% को ना चेंज करें। तो वो एक माइंडसेट होना बहुत जरूरी है, और अनिल भाई के आने से उसमें और बूस्ट मिलता है, क्योंकि इनका माइंडसेट भी वैसा ही था कि कोई भी सिचुएशन से हम मैच जीत सकते हैं, और ऐसा उन्होंने कितनी बार किया टीम के लिए कि जब लगता है कि नई विकेट्स मिल सकते हैं वो आके विकेट ले लेते हैं, 4-5 विकेट एक स्पेल में। तो आई थिंक माइंडसेट एक डिफरेंस क्रिएट करता है, जो जैसा आप सोचते हैं किसी भी सिचुएशन के बारे में। और ऑब्वियसली जब तक हम ट्राई नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि हम कितनी एबिलिटी है किसी भी सिचुएशन से मैच जीतने की। आई थिंक अगर हार का थोड़ा हेजिटेशन रहता है तो आप कभी ट्राई नहीं कर पाएंगे और आपको पता नहीं चलेगा कि आप में कितनी एबिलिटी है। तो हमारा यही मोटिव रहता है कि हम एक्सप्लोर करें कि हम कितने अच्छे हैं। तो आई थिंक अनिल भाई के आने से हमको सबसे बड़ी एडवांटेज वही है, और वही एक हमारा मोटिव था टू हैव हिम हियर, कि मतलब जो खुद इंडिया टीम को इतने टेस्ट मैचेस जिता चुके हैं, नॉट जस्ट होम बट अवे मोर इम्पोर्टेंटली, तो उनका हमें जितना इंफॉर्मेशन मिल सके कि क्या स्किल चाहिए, क्या मेंटल सेटअप चाहिए टेस्ट मैचेस जीतने के लिए, आई थिंक वो सबसे बड़ी हेल्प है हमारे लिए। और ही इज बिन मोर देन विलिंग टू स्पीक टू एवरीवन, बैट्समैन, फास्ट बॉलर, स्पिनर, सबसे इक्वली इन्होंने टाइम स्पेंड किया है, सबको इक्वली एक्सप्लेन किया जो भी कंसर्न्स हैं। तो अभी तक बहुत अच्छा रहा है और हमको आगे भी वी वेरी एक्साइटेड कि बहुत अच्छी रहेगी एसोसिएशन।